نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، پچھلے سال کووڈ کے دنوں میں کراچی میں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، پادری شفیق کمل، ان کی اہلیہ پاسٹر غزالہ شفیق، کافی ایکٹیو ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اپولوجسٹ ہیں، کافی زیادہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کووڈ کے ایام میں پاکستان میں جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، جنہیں پنجابی چیسی کی کہنے ہیں، خسرے جنہوں ہی کہنے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا چرچ شروع کیا۔ جب انہوں نے چرچ شروع کیا، اور چونکہ وہ میرے بڑے اچھے جان پہچان والے ہیں، سوشل میڈیا پہ انہوں نے بات کی، پھر مجھ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور ہم نے گروپ بنایا ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، جو کچھ ہم ان کے ساتھ ہیلپ یا سپورٹ کر سکتے تھے وہ بھی کی۔ اور ایک دن میں نے ان کے ساتھ ایک لائیو پروگرام کیا کہ جتنے خواجہ سرا ہیں آپ ان کے ساتھ میرا ایک لائیو پروگرام تو کرائیں، تاکہ میں ان کے ساتھ پرسنلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ جتنے خواجہ سرا تھے ان میں سے اگر 15 بیٹھے ہوئے ہیں تو 12 وہ تھے جو میرے اپنے علاقے کراچی کے عیسیٰ نگری سے تھے، جہاں میں پلا بڑا، اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاسٹر غزالہ نے ان کو میرے بارے میں کیا بتایا، تو وہ سارے دور دور بیٹھے ہوئے جیسے آئسولیٹ ہوتے ہیں اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کہ مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، جب میں نے ان کو اپنے علاقے کا نام بتایا، جب میں نے اپنا نام بتایا، جب میں نے ان کو گلیاں بتائیں، تو 4-5 تے انج لگے جو سکرین دے وچوں باہر آ جان گے، انج جمپ لگا کے سامنے آئے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ بعض اوقات جب ہم سوسائٹی کے مارجنلائز لوگوں کو، سوسائٹی کے ریجیکٹڈ لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، یا خدا ان کو جب لے کر آتا ہے کہ جن کا سماج میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ہر کوئی ان کو ہیوملیٹ کرتا ہے، ہر کوئی ان کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور جب وہ خدا کے خاندان میں، خدا کے گھر میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی خوشی اور ان کی جو جوائے ہے وہ باقی لوگوں سے بہت فرق ہوتا ہے۔ آج ہم رسولوں کے اعمال کے سرمن سیریز میں 8ویں باب پر پہنچے ہیں، اور خدا کا روح اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں لے کر آیا جی کہ فلپس مبشر، فلپ دا ایونجلسٹ، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 7ویں باب میں سیکھا تھا کہ فلپس ان 7 لوگوں میں سے تھا جو کہ گریک سپیکنگ جو یہودی رسولوں کے اعمال میں یروشلم کی کلیسیا میں تھے، جو چھوٹی سی خدمت، اور وہ خدمت ان کی کیا تھی؟ بیوہ عورتوں کی خبرگیری کرنے سے شروع ہوئی، اور ان میں 2 لیڈر کھڑے ہوئے جن کو بائبل مقدس نے ریکارڈ کیا ہے۔ فرسٹ مارٹر اسٹیفن، کلام میں لکھا ہے وہ روح القدس سے بھرا ہوا، وہ کلام میں اور آرگیومنٹ میں جو صدر عدالت تھی، یہودی سپریم ریلیجس کورٹ تھی، ان میں سے کوئی اس کا سامنا نہیں کر پایا، اینڈ الٹیمیٹلی پہلا شہید چرچ کا اسٹیفن 7ویں باب میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پرپسفل پرسیکیوشن ہم نے سیکھا کہ خدا جب اپنے لوگوں کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات خدا بڑے ایکسٹرا آرڈنری طریقے استعمال کرتا ہے، اور رسولوں کے اعمال میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے رسولوں کے اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں، جس میں خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، پھر دنیا کی انتہا تک، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً ہم نے 8ویں باب تک دیکھا کہ یروشلم کی کلیسیا کو 35-30 ہزار تک کیا ہو گئی ہے؟ پہنچ گئی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سال لگے ہیں، وی ہیو نو آئیڈیا کہ کتنے سال لگے ہیں، لیکن کلیسیا اتنی بڑھ گئی ہے اور کلیسیا کمفرٹ زون میں آ گئی ہے۔ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ خدا کو پرپسفل پرسیکیوشن اگنائٹ کرنی پڑی تاکہ کلیسیا اپنے کمفرٹ زون سے کیا ہو، باہر نکلے۔ اور یوں ہم نے دیکھا کہ جس دن ایذا رسانی ہوئی کلیسیا پر، جتنے لوگ یروشلم سے بھاگے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ گواہی دیتے یسوع مسیح کے کلام کی منادی کیا ہوا کرتے پھرے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ 8ویں باب میں جو فلپس ہے وہ کہاں پہنچا ہے جی؟ سامریہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اور سامریہ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ پچھلے 8 چیپٹرز کے اندر کہ ابلیس جو ہے، شریر جو ہے، وہ کلیسیا پر اپنے اٹیک کیا ہے اس نے کرنے شروع کیے ہیں، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ انٹرنل اٹیک میں دیکھا حنانیہ اور سفیرہ ہپوکریٹ کلیسیا میں شامل ہو گئے، خدا نے ان کو کیا کیا؟ اپنی ججمنٹ پاس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھا کہ پھر ان کی پیشی ہو گئی رسولوں کی، اور پھر ان کی عدالت ہو گئی، پھر ان کو منع کیا گیا، ایکسٹرنل اٹیک ہوا۔ فلپس جب سامریہ میں آیا ہے تو پھر پہلا اٹیک کیا ہوا ہے؟ انٹرنل۔ اور ہم نے دیکھا کہ سامری جو تھا شمعون، ٹھیک ہے، وہ اپنے ٹرک سے، اپنے جادو سے، اور وہ خدا کی بخشش کو اس نے اپسٹولک اتھارٹی جو تھی، رسولوں کا جو اختیار تھا، اس کو اس نے پیسوں سے خریدنے کی کیا کی؟
कोशिश की और अल्टीमेटली पतरस को उसे एनकाउंटर करना पड़ा कि तू बपतिस्मा याफ्ता भी है, तू पादरी साहब दा फिलिपस मुबशर इवेंजलिस्ट का बैग भी उठा के फिरता है, तू क्रूसेड भी अटेंड करता है, तू सारा कुछ करता है, लेकिन अभी तक तू नाराजगी के बंद में क्या है, गिरफ्तार है। योर सोल स्टिल पॉइजन्ड। तौबा कर। हमने देखा कि इंटरनल अटैक हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला कि कलीसिया जो है कलाम में लिखा है, जब हमने 8वें बाब को पढ़ा था तो हमने देखा था कि 25वीं आयत में फिर वो गवाही देकर और खुदावंद का कलाम सुनाकर यरूशलेम को क्या हुए, वापस हुए। तो आपने एक चीज देखी है जी कि इस सारे सिनेरियो में सामरिया शहर के अंदर इट्स ए अर्बन रिवाइवल, मतलब शहर के अंदर पूरे का पूरा शहर क्या हो गया है, इट्स रिवाइव। खुशी लिखा, उस शहर में बड़ी खुशी हुई, पूरे शहर में लोग जौक दर जौक, कबीले दर कबीले, खानदान दर खानदान क्या हुए, उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, कबूल किया। और लगता यूं था कि अब फिलिपस मुबशर की यहां पर सीट क्या है, पक्की है। इतना बड़ा रिवाइवल आया, ठीक है ना, मौजज़े हो रहे हैं और जनाब बदरूएं निकल रही हैं और बीमार शिफा पा रहे हैं, लोग तौबा कर रहे हैं और पूरे शहर में बड़ी खुशी हुई है। तो अब टेक्निकली लॉजिकली क्या करना चाहिए फिलिपस को उस शहर में, ताकि वो क्या कर सके, अब चीजों को टेक केयर कर सके, ठीक है। लेकिन ये उसकी कॉल नहीं है। और यूं हम देखते हैं कि देयर इज अ टोटली अपसाइड डाउन। कलाम में लिखा है जब ये काम हो गया है शहर में, अर्बन में, रीजन के अंदर बड़ा काम हुआ है, फिर खुदावन के फरिश्ते ने फिलिपस से कहा, हियर इज यू गो, नाउ देयर इज अ कॉल। अब उसकी कॉल आई है जी, और कॉल क्या है, उठ। अब अपने कंफर्ट जोन से क्या हो, अब जो तू माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस तूने किया है, अब उससे क्या हो, अब बाहर निकल और क्या कर, उठकर दक्खन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है, एंड दैट वाज अ विल्डरनेस डेजर्ट। आपके पास नई गाड़ी हो, उम्दा कुशन वाली सीटें हो, अंदर एसी लगाओ, ठीक है, घर जाओ तो गूगल नु कहो तो यहाँ आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो जनाब एसी की कर दे, फटाफट ऑन कर दे, कुशन लगे हों, टीवी स्क्रीन वड्डी होए, ए गरम गरम खाने तो जनाब मार अपना हर क्वायर प्रैक्टिस से भी डिनर, ते मार अपना इतवार में भी शाम ਨੂੰ डिनर, ते अपना सोडे, ते मार दावतां, ते घरां दे विच बात ना सारा कुछ। तो खुदा कहे कि भाई इथों निकलो होन ते की करो, सीधा जाके वेगस राह च डेजर्ट पैंदा ना, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇ, मतलब ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ मतलब ਇਟਸ ਇਲੌਜੀਕਲ, मतलब ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਫੈਲ ਗਈ ਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, कौन देखेगा। सबसे बड़ा चैलेंज, लेकिन देयर इज अ कॉल, खुदा का रूह, कलाम में लिखा है बाय द कॉलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, खुदा का रूह बल्कि फरिश्ते ने, पहले फरिश्ता, खुदा का रूह भी आगे आएगा एक्चुअली, खुदा के फरिश्ते ने, तो आप देखेंगे कि यहां पर फरिश्तों की मिनिस्ट्री हम पीछे देख चुके हैं, आपको याद है पतरस कैद खाने में था, तो फरिश्ते ने क्या किया, रात को उन दोनों को निकाला, वो पीछे सिपाही कैद खाने लबन डे ने, वो भाई दोवें कितने मनादी करन डे ने हैकल दे विच, उन्होंने कहा बाहर किवें निकले ने, उन्होंने कहा सानू नहीं पता किवें निकल गए ने, पर निकल गए ने। सो फरिश्तों की मिनिस्ट्री हम सब जानते हैं, कलाम में लिखा है कि क्या ये वो खिदमत गुजार रूहें नहीं हैं जो निजात की मिरास पाने वालों के लिए भेजी जाती हैं। खुदा के फरिश्ते खुदा के लोगों के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, और यहां पर मिनिस्ट्री टोटली काउंटर इंट्यूटिव है। इतना बड़ा रिवाइवल, इतनी बड़ी बल्ले बल्ले, इन्ने हार ते इन्नियां सीटां ते मार जनाब, प्रोग्राम ते कन्वेंशनां ते कॉन्फ्रेंसां ते पता नहीं की कुछ, और खुदा का रूह, खुदा का फरिश्ता फिलिपस से कह रहा है कि इत्थों की कर, लीव द पार्टी और क्या कर, डेजर्ट, गो टू डेजर्ट, बियाबान में, अकेले में, कोई पता नहीं, कोई नहीं दसिया, उत्थे खान नू मिलेगा, उत्थे रहन नू मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्थे बर्गर मिलणगे नहीं मिलणगे, ठीक है, फ्राइज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मतलब कोई पता नहीं उत्थे, यू हैव टू लीव, गो, उठ। कलाम में लिखा है जी,
وہ نکلا ہے جی یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے, بیابان ہے, ڈیزرٹ ہے. کلام میں لکھا ہے جی وہ اٹھ کر کیا ہوا, روانہ ہوا. تو دیکھو میرے عزیزو, بعض اوقات خدا کے روح کی کال کو ڈینائی کرنا, خدا کے روح کو ریجیکٹ کرنا اور خداوند کی کال کو اپنے پرسنل پریفرنس پہ رکھنا, that's the biggest challenge for the ministers and the leaders. کیونکہ ہم اپنے ببل, اپنے باکس, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا نہیں چاہتے. اس کو خدا نے نکالا ہے, اتنی عزت, اتنی شہرت, اتنا بڑا مجمع, اتنی بڑی کلیسیا, پورا شہر اس بندے کی منسٹری کے وسیلے توبہ کر چکا ہے. But that's not the ultimate call. جیسے مدر ٹریزا کا بڑا مشہور کال ہے جی, انہوں نے کہا God has not called me to be successful, God has called me to be faithful. ہم خدا کے ساتھ وفادار کتنے ہیں, کامیابی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وفاداری, obedience, that's the major point. کلام میں لکھا ہے جی فلپس اٹھا ہے اور دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا. انٹروڈکشن ہے جی, کیا ہے بندے کا انٹروڈکشن جی, 2 strangers, کبھی نہیں ملے زندگی میں, never ever met, لیکن that's a divine appointment. یہ خدا کے روح کا دیا گیا ٹائم ہے, یہ خدا کی طرف سے دیا گیا orchestrated ٹائم فریم ہے, جس میں خدا ایک ایسے بندے کو اٹھا رہا ہے جس کے وسیلے پورا شہر توبہ کر چکا ہے, لیکن اب ادھر پورا شہر اور ادھر ایک اکیلا آدمی. مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں نے پڑھا کہ دلی کی جامعہ مسجد میں جی, انڈیا میں, لکھے جی ایک جو مفتی تھے, ان کا جمعے کا جو خطبہ ہوتا تھا اسے سننے کے لیے بڑی دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے. اور جامعہ مسجد کا مطلب یہ ہے جی کہ تقریباً 25 سے 30 ہزار بندہ کیا ہو, وہاں پر گیدرنگ ہو, مطلب اس سے بھی زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جی وہ مولانا صاحب نے جب خطبہ اپنا ختم کیا تو تھوڑی دیر کے بعد جب خطبہ ختم کر کے, نماز ختم کر کے اپنے حجرے میں آ کر بیٹھے تو ایک بندہ دور سے ہانپتا کانپتا جو ہے نا وہ پہنچا. کہنے لگا جی مولانا صاحب میں بڑی دور کے گاؤں سے آ رہا ہوں اور رستے میں لیٹ ہو گیا ہوں, میری بس چھوٹ گئی تھی, میں بھاگتا ہوا آیا ہوں کہ میں آپ کا خطبہ سن سکوں, لیکن نماز ہو چکی ہے, خطبہ ختم ہو چکا ہے, کیا آپ وہ خطبہ مجھے دوبارہ سنا سکتے ہیں؟ تو واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں جی کہ وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے وہ پورا خطبہ جو انہوں نے 30 سے 25 ہزار لوگوں کے سامنے سنایا تھا, وہی خطبہ اس ایک بندے کے لیے کیا کیا, رپیٹ کر دیا. اب جو ان کے شاگرد اور باقی لوگ ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, باقی لوگ, وہ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے جی آپ نے ایک اکیلے بندے کے لیے آپ نے پورا رپیٹ کیا جبکہ 30-35 ہزار بندہ اس کو پہلے کیا کر چکا ہے, تو کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو بھیج دیتے. انہوں نے جواب دیا کہ جی میں پہلے بھی ایک کو خوش کر رہا تھا اور میں اب بھی ایک ہی کو کیا کر رہا ہوں, اور اشارہ کہاں کیا, آسمان کی طرف کیا. پرپس یہ نہیں ہے کہ سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پرپس یہ ہے how faithful you are to your call. فلپس مبشر کے ساتھ یہی ہوا ہے, پورا شہر چھوڑ کر, پوری شہرت چھوڑ کر, پوری عزت اور پورا پروٹوکول چھوڑ کر یہ بندہ کہاں نکلا ہے, ایک بندے کے لیے خدا کا روح سے لے کر جا رہا ہے, حبشی خوجہ. اور لکھا ہے جی کہ ہی واز ایتھیوپین, جو لفظ ہے وہاں پر ایتھیوپین ہے, لیکن ایکچولی اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ نہ تو ابھی نارتھ امریکہ دریافت ہوا تھا, نہ آسٹریلیا دریافت ہوا تھا, اور نہ ابھی کوئی اور چیزیں تھی. تو اس دور کی دنیا کا جغرافیہ یہ تھا کہ صرف 3 کانٹیننٹ ہیں, اور ادھر سے افریقہ اور ادھر سے انڈیا, یہ دنیا کی کیا ہیں, حدیں ہیں, ختم دنیا. تو اس دور میں سمجھا جاتا تھا کہ افریقہ جو ہے, حالانکہ یہاں پر ایتھوپیا جو ہے اگر آج کے دور میں اس کو اگر اس کا جغرافی کیلنڈر بنایا جائے تو یہ سوڈان کا ملک بنتا ہے. بہت سے لوگ اس کو ایتھوپیا بھی کہتے ہیں, لیکن اٹ واز ایکچولی ہول ریجن, جو کہ لوور جو پارٹ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے افریقہ کا تو ایجپٹ جو ہے, مصر جو ہے, وہ کون سے کانٹیننٹ میں آتا ہے, افریقہ. بہت سے لوگ اس کو مڈل ایسٹ میں کیا کرتے ہیں, لیکن ایکچولی افریقہ جو ہے وہ کہاں پر ہے, جو ایجپٹ ہے وہ افریقہ کے ریجن میں آتا ہے. تو ایکچولی یہ جو ریجن بتایا گیا ہے دیٹس آل افریقن ریجن, جو مصر سے شروع ہوتا تھا اور پورا ویسٹ افریقہ کو کور کرتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک افریقہ کے آئے ہیں, یہ تو 2nd ورلڈ وار کے بعد بہت سارے آزاد ہوئے ہیں,
वरना ये पूरा क्या था, पूरा एक ही रीजन था। सो जो रीजन है जी, सो एथियोपियन है, ही इज एन अफ्रीकन ब्रदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये इसके अंदर बड़ी दिलचस्प है, वो क्या है, ही वॉज अ ट्रिपल आउटकास्ट। एक तो आउटकास्ट होता है ना, तो ये ट्रिपल आउटकास्ट था। क्या? नंबर वन, सोशली ही वॉज नॉन एथनिक, ही वॉज अफ्रीकन। नंबर टू, जेंडर वाइज इसके बारे में लिखा है जी कि ही वॉज यूनिक। यूनिक ऐसे लोगों को कहा गया जी, ख्वाजा ऐसे लोगों को कहा गया है। और चूंकि ये सरकारी ख्वाजा था, इसका मतलब ये है कि ही वॉज इन द सर्विस इन द रॉयल कोर्ट। और रॉयल कोर्ट की जो हिस्ट्री है वो हमारे सामने है। सो ये ट्रिपल आउटकास्ट था। एक तो ये नॉन एथनिक है, दूसरा ये ख्वाजा है, और तीसरा क्या है कि ये अपने यहूदी लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता। सो मेरे अजीजों, अफ्रीकन जो ज्यूइशनेस है, इसकी जो जड़ें हैं ये कोई नई नहीं है। सुलेमान बादशाह के दौर में आपको याद होगा कि मलका उससे मिलने आई थी, ठीक है, सबा की मलका से कहा गया। आज के दौर में उसे यमन का एरिया कहते हैं, बट एक्चुअली हम सब जानते हैं कि सुलेमान बादशाह के बारे में दर्ज है जी, उसकी 300 तो क्या थी, बीवियां थी, और 700 हैरम था। मतलब कि हैरम का मतलब होता है कि दे वर ऑल फ्रॉम द रॉयल फैमिलीज। इर्द गिर्द के जो रियासतें थी, इर्द गिर्द के छोटे मोटे जो मुल्क थे, उन सब के साथ उसकी क्या थी, वो उनके साथ उसकी रिश्तेदारी थी। और उन्हीं में बहुत सारे लोग जो हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, चर्च हिस्टोरियन, वो इस बात पर एग्री हैं कि इन्हीं में से सुलेमान की जो एक मलका थी वो अफ्रीकन भी थी। आपको पता है उसकी आखिरी बीवी कहां से थी? मिस्र से। मिस्र, जैसे मैंने पहले बताया है कि दैट वाज रीजन कहां का है, अफ्रीकन। तो जो यहूदी जो अफ्रीकन ज्यूइशनेस है, ब्लैक ज्यूइशनेस जो है, उसकी जड़ें सुलेमान बादशाह की लिनिएज से जाकर क्या हैं, मिलती हैं। तो यही वजह है कि आपको एक बल्कि मूवी भी पिछले दिनों एक आई है जिसमें उन्होंने पूरा एक रेस्क्यू प्लान दिया कि कैसे जो इस्राइल के जो इंटेलिजेंस है वो रेस्क्यू करती है अफ्रीकन ज्यूइश को, और वो पूरा उन्होंने प्लान दिखाया कैसे वो करते हैं। सो एनीवे, सो उसकी जड़ें वहां पर हैं जी। इसके अलावा आप यिर्मयाह नबी के सहीफे में देखेंगे, यिर्मयाह नबी के सहीफे 38 बाब के अंदर जो हम एक नाम पढ़ते हैं जी, अबद मलिक जो था वो अफ्रीकन था, और ये वो शख्स था जो बादशाह के दरबार में मौजूद था। और इसने यिर्मयाह नबी को जब गड्ढे में फेंक दिया गया था, और यरूशलेम की बर्बादी की जब वो पेशेंटगोई करता था, तो उसको सजा के तौर पर कुएं में फेंक दिया गया, कीचड़ वाले कुएं में। तो वहां पर ये अबद मलिक था, और ही वॉज अफ्रीकन, जो यिर्मयाह नबी को खाना और उसकी टेक केयर करता था। सो अफ्रीकन्स वर ऑलरेडी इन द रॉयल कोर्ट। आप देखेंगे कि जो यूनिक है, जो ख्वाजा सराय है, हमने पिछले दिनों एस्तर मलका की किताब से मैंने पिछले दिनों कलाम सुनाया था, और आपको याद होगा कि एस्तर मलका की जो बादशाह का जो हैरम होता था, उसमें जो खिदमत गुजार होते थे वो कौन होते थे? वो ख्वाजा सरा होते थे। और ये टेक्निकल टर्म होती थी। जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है जी, वो उसका जो तर्जमा है वो है द कीपर्स ऑफ द रॉयल बेड। क्या तर्जमा उसका? द कीपर्स ऑफ द रॉयल बेड। क्योंकि उस दौर के अंदर जिन लोगों को होते, ये मर्द थे, लेकिन इनको कैस्ट्रेट कर दिया जाता था, इनकी जो जिनसी प्रोसेस होता था उसको कट ऑफ कर दिया जाता था, और ताकि ये बादशाह के महल में, बादशाह की जो हरम है, जो क्वीन है, जो बादशाह की लिनियज है, ये उसकी क्या कर सकें, हिफाजत कर सके, और बादशाह को, उसके घराने को खतरा ना हो कि हमारी जनरेशन कहीं मिक्स ना हो जाए। इसलिए ऐसे लोगों को जानबूझकर कैस्ट्रेट कर दिया जाता था कि ये औलाद पैदा नहीं कर सकते थे। लेकिन इनको, इनके रुतबे, इनकी जो प्रिविलेजेस, ये बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि इनकी एक्सेस बादशाह के बेडरूम तक होती थी। So that's the reason। और ये बाज हिस्टोरियन इस बात पर एग्री करते हैं कि डैनियल, जो कि नबूकदनेस्सर बादशाह के दरबार में था, वो ये बयान करते हैं इट इज पॉसिबल कि डैनियल को भी कैस्ट्रेट कर दिया गया था। यही वजह है कि डैनियल का जो अप्रोच थी, डैनियल नबी की जो लिनिएज थी, वो हमें उसके बाद नहीं मिलती, बट ही हैज अप्रोच टू रॉयल बेडरूम। तो यूनिक था। लिखे जी, हबशी ख्वाजा, वो हबशियों की मलिका किंदाके का क्या था?
वजीर आम वजीर नहीं था, सारे इंडिया पाकिस्तान वाले वजीर नहीं आना. He was Chamberlain, it's an old English word, और इसका मतलब यह है कि he was a chief treasurer, जो खजाना था उस मुल्क का, ये क्या करता रहा, उसको डील करता. He was well educated, high profile personality. रथ इसके पास आप देखेंगे, और ये कंदाके जो है जी, it's not a proper name. कंदाके जो है, it is a title. Queen Candace, it's represent to the lineage, dynasty को पेश करता है. ये प्रॉपर नाम नहीं था. जैसे हमारे कहते हैं ना प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तो कोई भी हो सकता है. प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी हो सकता है. आजकल कौन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर? ठीक है जी. प्रेसिडेंट कौन है? मेरे को प्रेसिडेंट का कहीं नहीं पता, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पता है. ठीक है. इसी तरह किसी दौर में इंदिरा गांधी बड़ी मशहूर थी, हमारे पाकिस्तान से पहली वजीर आजम खातून. ठीक है. आजकल खान साहब ने. सो ये ओहदे का नाम था. जस्ट लाइक अ फेरो कोई भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है. सो मलका कंदाके, और जो लिनियज थी आप देखेंगे कि उस दौर में भी जो मुल्क का निजाम है, हम इंग्लैंड की क्वीन को तो कहते हैं कि इंग्लैंड की क्वीन जो है 100 सालों तक बैठी है, और जो है मैट्रियार्की को हम प्रमोट करते हैं, या फेमिनिज्म है. उस दौर में पूरी सल्तनत किसके अंडर चल रही है? क्वीन के अंडर चल रही है. सो आप देखेंगे कि मलका, जो बादशाह के बारे कहा जाता है जी कि वो बादशाह जो होते थे, दे वर टोटली आइसोलेटेड, उनको सिक्योरिटी पर्पस से लोगों के सामने नहीं लाया जाता था. दैट वाज द मेल पर्सन वाज ओनली सिंबल. जो अमूरे मुमलिकत होते थे वो कौन चलाती थी? वो मदर चलाती थी. So that's why he was, इसकी अप्रोच चूंकि रॉयल हैरम तक थी, बेडरूम तक थी, खवातीन के उस लेवल तक थी जहां पर आम बंदे की रसाई नहीं हो सकती थी. यही वजह है कि खुदा का रूह जब पूरे अफ्रीका को अप्रोच करने लगा है फर्स्ट मिशनरी के वसीले से, तो खुदा ने जिस बंदे का चुनाव किया है ऐसी जगह कि जहां पर कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता कि मैं पहुंचूंगा. दैट्स हाउ गॉड स्पिरिट वर्क. रिजल्ट उसका यह निकलता है. मैं थोड़ा सा आगे जंप करने लगा हूं. हम समझते हैं कि शायद पहली क्रिश्चियन स्टेट रोम थी. ऐसा नहीं था. फर्स्ट सेंचुरी के अंदर सन 60-70 की दहाई में 3 क्रिश्चियन स्टेट थी, जो तीनों की तीनों नॉन वेस्टर्न थी. एक एथोपिया अफ्रीका के अंदर, दूसरी आर्मीनिया, ठीक है, एक कंट्री और थी, मेरे ज़हन से नाम निकल गया. ये 3 कंट्री थी जो पहली सदी के अंदर, जिनके पूरी की पूरी स्टेट क्या थी? क्रिश्चियन. ये रोम शोम तो सारे 300 साल के बाद आए हैं. सो ये पहली सल्तनत आप देखते हैं जी. सो दैट्स हाउ गॉड स्पिरिट इज वर्किंग. लिखा जी, वजीर और उसके सारे खजाने का क्या था? मुख्तार था. और हम देखते हैं जी कि खोजा, तीसरा जो लफ्ज मैं आपके सामने इसको अनपैक करना चाह रहा हूं, खोजा जी, वो मैंने आपके सामने किया है. ये तो हमने देखा कि वो ये उसका करैक्टर है, लेकिन बाइबल मुकद्दस खोजों के बारे क्या कहती है? दैट्स इंटरेस्टिंग. अगर आप इस्तिस्ना, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 23 अगर आप देखेंगे, इस्तिस्ना डिट्रोनॉमी चैप्टर 23 और वर्स 1. लॉ ये था, जिसके खसिये कुचले गए हों या आलत काट डाली गई, वो खुदावंद की जमात में आने ना पाए. जिसको कैस्ट्रेट कर दिया गया है, जिसने अपनी मर्जी से कैस्ट्रेट, या हालात की वजह से या किसी भी वजह से, वो शख्स वर्शिप के अंदर खुदा के लोगों के साथ, यहूदियों के साथ वो शामिल नहीं हो सकता था. दैट वाज द मोसेस लॉ. ठीक है जी. खुदावंद यीशु मसीह ने खोजों के बारे में भी एक तालीम दी. अगर आप मत्ती की इंजील 19वां बाब देखेंगे तो वहां पर आपको दिलचस्प यीशु मसीह की स्टेटमेंट नजर आएगी. मत्ती की इंजील 19वां बाब है जी. 11वीं आयत में, 11 और 12 आयत. यहां पर कॉन्टेक्स्ट है, यीशु मसीह के सामने सवाल आता है जी कि तलाक देनी चाहिए या लेनी चाहिए कि नहीं.
ठीक है, ये एक अलग बहस है, मैं कभी इसके बाद में बात करूंगा। लेकिन 11वीं आयत में लिखा हुआ है, शागिर्दों ने उससे कहा 10वीं आयत से कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उन्होंने कहा जी काम ही मुका दो, ब्याह ही नहीं कर दे, छड्डो पर, ठीक है ना। उन्होंने कहा मेरा भार ही पाना, मेरा वक्त ही पे, ब्याह ही नहीं कर देगी। उसने उनसे कहा सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज खौजे ऐसे हैं जो मां के पेट ही से ऐसे पैदा हुए। ठीक है जी, बायोलॉजिकली फर्स्ट कैटेगरी। नंबर 2, बाज खौजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने क्या किया है, दे वर फोर्सफुली कैस्ट्रेटेड। और ये मोस्टली रॉयल फैमिलीज के अंदर होता था, जैसा कि हबशी ख्वाजा हमारे सामने है, आस्तर मलका के ख्वाजा साहब देखते हैं, और बहुत सारे बाइबल मुकद्दस के नैरेटिव में आपको बहुत सारे ख्वाजा सराओं की स्टोरियां मिलेंगी। तो जिनको फोर्सफुली क्या किया जाता था, कैस्ट्रेट किया जाता था। बाज ख्वाजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को क्या बनाया है, दैट इज रिफरिंग टू सेलिबसी, कि जिन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया है कि वो शादी नहीं करेंगे, वो अपनी नस्ल को, अपने खानदान को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दैट्स रिफर्ड टू सेलिबसी। कंक्लूजन पॉइंट ये है कि जो कबूल कर सकता है वो क्या करे, वो कबूल करे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ख्वाजा सराओं के बारे में ये जो है ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन ये जो हबशी ख्वाजा है, सो ये यरूशलेम क्या करने गया था जी, क्या करने, इबादत करने गया था ना। अकॉर्डिंग टू लॉ तो वो दाखिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मोसेस लॉ ये बंदा आउटकास्ट है, ही इज फॉरबिडन, ही कैन नॉट एंटर इनटू द ज्यूइश कोर्ट, ना वुमन वाले कोर्ट में और ना यहूदियों वाले मर्दों वाले कोर्ट में। तो फिर ये कहां तक रहेगा, गैर कौमों के सहन तक। दैट्स इट, पीरियड। इससे आगे यू कैन नॉट गो। नंबर 2, सोशली ही इज आउटकास्ट। आज 21st सेंचुरी के अंदर हमारे मोहल्लों, आबादियों, कॉलोनियों में से खुसरा वे लिए तो साडा हासा निकल जाता, यहां से उन्होंने की करने हैं, ह्यूमिलिएट करने हैं। तो अंदाजा करें आज से 2000 साल पहले क्या होता होगा उनके साथ, how they have been treated, how they have been rejected। तो इसका मतलब यह है डिस्पाइट हिज फिजिकल कंडीशन, इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बावजूद ये शख्स कम से कम 100-150 मील का रथ के ऊपर सफर तय करके खुदा के घर में क्या गया है, इबादत करने गया है। इसको पता है वहां मुझे लोग कबूल नहीं करेंगे, मुझे ह्यूमिलिएशन मिलेगी, आई एम रिजेक्टेड। इसके बावजूद उसका ध्यान ये नहीं है कि लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, उसका ध्यान कहां पर है कि आई एम फॉलोइंग एंड फेथफुली सर्विंग एंड ऑफरिंग माई पिलग्रिमेज। सो हम देखते हैं जी, और ये इबादत वहां कर कर ये अपने आप को, मुझे पता है कि एक बार फिर ये वहां पर ह्यूमिलिएट होकर, रिजेक्ट होकर, और वो यहूदियों के साथ कभी शामिल नहीं हो सकता। इसके बावजूद उसी ह्यूमिलिएशन, उसी रिजेक्शन और उसी बेइज्जती और शर्मी के साथ वो अपने रथ में बैठा क्या है, वापस जा रहा है। एंड दैट्स वेयर गॉड्स स्पिरिट मूव नाउ। खुदा का रूह आता है। लिखे जी, वो अपने रथ पर बैठा हुआ यसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। ठीक है, खुदा के रूह ने, लिखा जी, रूह ने फिलिप्पस से कहा नजदीक जाकर उस रथ के क्या होले, साथ होले। मैंने आपको मतलब बताया ना फिलिप्पस का नाम का मतलब क्या है, लास्ट संडे बताया था मैंने, किसी को याद है? लवर्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से मोहब्बत करने वाला। ठीक है, तो आई डोंट नो, क्योंकि वो ग्रीक था, ग्रीक स्पीकिंग था, ग्रीक स्पीकिंग ज्यूज था, तो आई डोंट नो कि उसका बैकग्राउंड घोड़ों के बारे क्या है। लेकिन रथ के साथ दौड़ने के लिए बंदा क्या चाहिए, ट्रेंड बंदा चाहिए।
जो बियाबान में रेत पर भी क्या कर सके, डेजर्ट है ना, हालांकि रास्ता बना होगा, लेकिन वो किस पर सवार है, रथ पर, रॉयल प्रोटोकॉल के साथ, और ये खुदा का खादम उन्हें दौड़ ला रही थी। सो फिजिकल एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है जी। आज मेरे वर्ग के 5 जना ढिड निकले ना, सो वी नीड टू वर्क आउट, ठीक है। वो भाई कलवंत को, क्या नाम है जी, सॉरी आपका, कलवंत साहब आए हैं, बड़े स्मार्ट से, टी शर्ट पाई, मैं पाऊं मेरा पेट बाहर आ जाता है, ठीक है, दौड़ की लानी है। हाँ, तो फिजिकली फिट, खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा कि दौड़ कर क्या कर ले, रथ के साथ हो ले, ठीक है जी। दैट्स डिवाइन अपॉइंटमेंट। ये खुदा का रूह वहां पर काम कर रहा है जी। लिखा है जी कलाम में, फिलिप्पस ने उससे क्या सुना, क्या पढ़ रहा है वो, यशाया। अच्छा, जे चुप करके पढ़ना हुंदा तो फिलिप्पस ने पता लगना सी की पढ़न दे। इट मींस कि मेथड में क्या लग रहा है वहां पर, वो कैसे पढ़ रहा था, आउट लाउड। और जो ज्यूइश तरीका कार था पढ़ने का, आपने देखा कभी यहूदियों को पढ़ते हुए, तो क्या है उसके पीछे ज़बूर 84 की वो आयत है, वो क्या है, मेरा रूह, मेरी जान और मेरा बदन खुदावन की क्या करती है, ताकि माई बॉडी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, हिलते हुए, आउट लाउड, ठीक है। और डबल ब्लेसिंग क्या है, वाई आउट लाउड, ताकि एक तो बॉडी इन्वॉल्व हो, कंसंट्रेशन रहे, दूसरा आउट लाउड। डबल ब्लेसिंग ये है, मुकाशफा किताब पहले बाब में क्या लिखा है, इस नबूवत की किताब का क्या है, पढ़ने वाला, और तो एक अकेला बंदा तीनों लेवल कैसे पार कर सकता है, जब वो क्या करेगा, ही विल रीड आउट लाउड, वो पढ़ भी रहा है और क्या कर रहा है, वो सुन भी रहा है, और उसकी बॉडी भी क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दैट्स हाउ उसने देखा कि यशाया, वो पढ़ा, उनका यशाया पढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग, खुदा के रूह ने फिलिप्पस को जब वहां भेजा है, ही वॉज नॉट वेंट देयर और सेंट देयर एज एन ऑडियंस, वो ऑडियंस के तौर पर नहीं गया कि की पढ़ने, मैं सुना जाके की पढ़ने दिया, ही सेंट एज अ टीचर टू टीच। यही वजह है कि जो डिवाइन डिजाइन है खुदा की खिदमत का, एक खुदा का खादम कहता है जी, खुदा ने 2 गिफ्ट दिए हैं कलीसिया को जो सबसे टॉप लिस्ट पर हैं। नंबर 1 स्क्रिप्चर, खुदा का कलाम जो खुदा ने दिया है, एंड नंबर 2 टीचर्स, जो उस कलाम को समझने के लिए क्या करें, आपकी मदद करें। सो यहां पर हम देखते हैं जी, फिलिप्पस ही वाज नॉट ओनली अ डीकन, बेवा औरतों की क्या कर रहा है, वहां से खिदमत आगाज होती है। ही इज एन इवेंजलिस्ट, ही वाज अ मिरेकल वर्कर, वो मौजज़ात उसके वसीले हो रहे हैं, उसके वसीले तौबा हो रही है, उसके वसीले प्रोक्लेमेशन हो रही है। एंड नाउ उस एक बंदे के अंदर तीसरी खिदमत जो खुदा के रूह ने ऐड की है, वो क्या है, ही इज अ टीचर नाउ। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर, ठीक है, यशाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा। 4 सवाल हैं जी इस डायलॉग के अंदर, 4 क्वेश्चंस। पहला सवाल फिलिप्पस की तरफ से आता है, सवाल क्या है, बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर यशाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा। पहला सवाल, जो तू पढ़ता है उसे क्या जी आगे समझता भी है? ऑनेस्टली ना दस्यो, साड़ियां उम्र लंघ गया ने पढ़दे हैं। अगर ये सवाल मैं आपसे करूं कि आप लोग जो पढ़ते हैं कलाम में से, क्या उसे समझते भी हैं? क्या जवाब है जी? बोलो, की हो गया? क्या ख्याल है जी? पिछों आवाज नहीं आई। समझते नहीं, वाई? आगे रीजन है, ठीक है। और रीजन क्या है? रीजन ये है, उसने कहा, ये कौन कह रहा है जी? हबशी ख्वाजा। ही इज वेल एजुकेटेड, मैंने बताया ना, वेल एजुकेटेड, वो खजाने का मुख्तार है, इज अ मैनेजर, मतलब उसकी मैनेजिंग स्किल्स है, वो रॉयल कोर्ट के अंदर है, वो दुनिया के उसको डिप्लोमेसी को डील करता है, ठीक है। ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन, ब्यूरोक्रेसी, टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है? सवाल का जवाब उसने कैसे दिया है?
सवाल की सूरत में, ठीक है। ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत। इत्थे 4 दिन हुंदे नहीं, बंदा किसी पादरी नाल टुरदा नहीं तो अगले दिन आप ही की बनया हुंदा है। उत्तों मोबाइल फोन ने, इंटरनेट ने लोगों ने मत मारी है, ठीक है। जेडे बंदे को इंटरनेट है या फोन है स्मार्ट, वो की है, वो स्कॉलर है। तो जो पुठी सीधी जो दिल च आउंदी इधर दी उधर, उधर इधर मार के लोगों को। अच्छा दिलचस्प बात है, तो लोग भी एडे सादे ने, वो हर जो क्रैप सोशल मीडिया पर समझते हैं सच ही है, ठीक ही होना है। तो ऐसा नहीं है। कलाम में क्या लिखा है, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। सो दैट इज द मिनिस्ट्री जहां पर खुदा का खादम खुदा की खिदमत को एज अ टीचर के तौर पर वो जो है वो पेश करता है। मेरे अजीजों, आपको याद होगा, क्रॉस रेफरेंस के तौर पर मैं दे रहा हूं, क्योंकि रसूलों के अमाल और लूका की इंजील किसने लिखी है? डॉक्टर लूका ने लिखी है, ठीक है। दोनों की किताबों का मुसन्निफ कौन है? लूका है। अंजील भी और रसूलों के अमाल भी। लूका इसी एंगल को 24वें बाब में बयान करता है, जब यीशु मसीह अमावस की राह पर जा रहे हैं। 2 शागिर्द क्या हैं? जा रहे हैं जी उठने के बाद, ठीक है। गल्लां भी करी आउंदे ने यीशु मसीह नाल, सारा कुछ करी आउंदे ने। जब रोटी खाने बैठे हैं ना, तब उन्होंने क्या किया? पहचान दी अखा, ओ तुहाडा भला जी, ये तो मास्टर है, उनका तो मालिक है। यीशु मसीह उन्होंने फिर चंगी झंप ने क्या, तुसी कूड़ दे कूड़ ही हो। 3.5 साल तक मैं तुहाडे नाल खपदा रहा वां, तुहानू फिर भी समझ नहीं आई। एंड देन क्या लिखा वहां पर? उसने उनका क्या खोला? उसने उनका जहन खोला। और क्या खोला कि वो क्या करें? किताबे मुकद्दस को समझें। किताबे मुकद्दस को क्या करें? समझें। और क्या समझें? कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, यीशु मसीह की खिदमत, यीशु मसीह का आना, दुख सहना, मुर्दों में से जी उठना, इट वॉज ऑल प्रोफेसाइड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। और जब स्क्रिप्चर की बात होती है तो नया ऐदनामा नहीं है, ये हमेशा किस तरफ रेफर किया गया है? हिब्रू बाइबल। इसलिए जिन लोगों को, जिन्होंने असी पुराना ऐदनामा कहने हैं, जिनको पुराना ऐदनामा नहीं पता, उन्होंने अलफ ते बे नवे दे भी कोई नहीं पता। कहानियां सुना के फारक करी होंगे, सेंसेशनल कहानियां सुनाएंगे, लोगों को एवं मैनिपुलेट करी होंगे। लोग वाह हाओ, अगले दिन फिर लैके आउणगे, यार वो छेती मुक गया, चस्का कोई नवी गल सुनाओ। वो तो छेती मुक गया, हुण कोई नवा बयान दसो सानू। पादरी भी उन्होंने को फुल जेबां भरियां होंदियां ने, इधर की कहानी उधर की कहानी इधर की। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, बनी इसराइल को खुदा ने ऐसे ऐसे मौजज़े दिए, ऐसे ऐसे खुदा ने उनके लिए काम किए, ऐसे ऐसे खुदा ने सुपर नेचुरल रिसोर्सेस यूज किए। हर मौजज़े तो बाद की करते हैं? बुड़बुड़ाहट। खुदा साडे वास्ते की कीता? मारा नहीं लाया सानू, ठीक है। यही हाल कलीसिया के अंदर भी होता है। लोगों को कलीसिया की तरफ से दे आर नॉट ऑलवेज एप्रिशिएटेड। वो हमेशा क्या देखेंगे इसके अंदर कि जी खामी किथे वे, कीड़ा मैं किड़े चो कढ़ना है, किहड़े बंदे मैं टारगेट करके ना, या किहड़े इवेंट नूं मैं क्रिटिसाइज करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो एप्रिशिएटिव मोड पर होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल गेम। ये मूसा के दौर में भी था, ये हर कलीसिया के दौर में, हर ये रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे लोग मौजूद रहेंगे। तो लिखा है जी टीचिंग। व्हाई टीचिंग? मेरे जीजो, आप देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में दर्ज है गॉड एज अ टीचर। खुदा खुद क्या है? टीचर है। खुदा ने मूसा को यह जिम्मेदारी लगाई कि बने इसराइल को सारे काम क्या करे? सिखाए, टीच देम। पेरेंट्स की जिम्मेदारी लगाई, उठते बैठते जागते लेटते अपने औलाद को क्या करना? तालीम देना। उठे नहीं क्या उन्होंने ड्रामे सुनाए या कहानियां सुनाए हो, उनको मौजे सुनाना? नो नो, क्या करना? उनको तालीम देना। प्रीस्ट लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को क्या रखें? महफूज रखें। खबरदारी ये दी गई, ऐसा दौर आएगा कि खुदा का कलाम क्या हो जाएगा? नापैद हो जाएगा, नबूवतें सीज हो जाएंगी, कलाम सुनाने वाले नहीं। लोग लिखा समुद्र से समुद्र तक दौड़ेंगे क्योंकि कलाम सुनाने वाला मिले, लेकिन कहानियां मिलनगियां, ड्रामे मिलणगे, फालतू दी गल्लां मिलणगियां, कलाम नहीं मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के अंदर यीशु मसीह का चीफ टाइटल क्या था? रैबाई, टीचर, उस्ताद। इसलिए आप जहां पर भी देखेंगे अंजीलों के अंदर जो तरतीब है यीशु मसीह के बारे में, वो शहर शहर गांव गांव, नंबर 1 तालीम, नंबर 2 मुनादी,
एंड नंबर 3 शिफा देता फिरा। मौजज़े शिफा, दे ऑलवेज फॉलो व्हाट? प्रोक्लेमेशन, प्रीचिंग, टीचिंग। टीचिंग ने कभी मौजज़ात को फॉलो नहीं किया। मौजज़ात ने किसको फॉलो किया है? टीचिंग को, तालीम को। सो इसकी यहां जिम्मेदारी क्या है कि लोगों को क्या करे? इसको सिखाए, तालीम दे। ग्रेट कमीशन क्या है? व्हाट इज ग्रेट कमीशन? मत्ती 28:16, बस तुम जाओ सब कौमों को शागिर्द, डिसाइपल, और उनको ना बस तुम बद है, तालीम दो, टीच देम। दैट्स अ ग्रेट कमीशन, टीच देम। पौलुस रसूल का खतूत उठा के देखना आप, थिमोथियस को अपनी और अपनी तालीम की क्या कर? खबरदारी कर। अच्छा, ऊपर वार्निंग भी है। याकूब के खत में है, मेरे ख्याल में इब्रानियों के खत में है, तुम में बथेरे उस्ताद। क्यों? लितरौड़ कितों शुरू होगी? उस्तादा तो। फॉल्स टीचर, अदालत टीचर्स की क्या होगी? वो पहले होगी। So that's why it is a sensitive ministry. आम काम नहीं है ये। So उन्होंने कहा जी जब तक कोई मुझे हिदायत, how can I do that? उसने फिलिप्पस से दरखास्त की कि मेरे पास, उन्होंने कहा जी आजा, अगर मेरे पास बैठ जा रथ पर, एंड टीच मी। किताब मुकद्दस की जो वो इबारत पढ़ रहा था, जो आज की सेकंड हमने रेफरेंस जो सुना है, जैसा 53 बाब वो पढ़ रहा था, ठीक है। उस दौर में चैप्टर तो नहीं थे, उसके पास तो पूरा स्क्रॉल था, ठीक है। और स्क्रॉल के ऊपर वो चैप्टर, तो ये बाद में चैप्टर जो है ये बाइबल मुकद्दस के, ये 15वीं सदी में एक इंग्लिश स्कॉलर था, उसने चैप्टर्स दिए हैं, वरना उससे पहले पूरे क्या होते थे? पूरे स्क्रॉल, पूरे के पूरे स्क्रॉल। तो उसके पास पूरा क्या है? स्क्रॉल था। ये तो मैं और आपको पता ना 53 बाब पढ़ लिया ही, ठीक है ना, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता था। लिखा जी, लोग उसे ज़बह करने को ले गए। उसने कहा जी, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है जी, उसने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं, ये नबी किसके हक में कहता है? दूसरा सवाल आया। नाउ ही इज एंटरिंग टू द डीप लेवल। पढ़ तो रहा है, अब वो क्या पूछ रहा है कि ये नबी किसके बारे कह रहा है, ठीक है। फॉलो अप क्वेश्चन, अपने या किसी और के बारे में, ठीक है जी। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नवश्ते से क्या किया? शुरू किया। So, इसका मतलब यह है कि फिलिप्पस हैज ऑलरेडी एक्सेस टू दी स्क्रॉल्स। उसे जुबानी याद है, उन्हें यानी क्या मतलब ऐप खोलना अपनी, अगर ठहर जाए मतलब बाइबल पढ़ लूंगा अपनी। इट वॉज ऑल ओरल ट्रेडिशन, दे ऑल मेमोराइज। ऑरल ट्रेडिशन है। आप देखेंगे पतरस की जो स्पीचेस हैं, स्टिफनस की जितनी स्पीचेस हैं, उन सब ने कहां से बोली हैं? टॉप ऑफ द हेड, राइट अवे। दे हैव मेमोराइज्ड होल स्क्रिप्चर। शुरू किया है। जब शुरू किया है मेरे जीजो, तो आई स्पेक्युलेट कि जब वो यसाया नबी के पूरे सिफे को पढ़ता होगा, यीशु मसीह खुशखबरी दी है, इस खौजे के लिए खुशखबरी थी। यसाया नबी के सिफे में से 56 बाब, तो देखिएगा 56, आइजाया चैप्टर 56। क्या खुशखबरी है इस खौजे के लिए, इस मार्जिनलाइज के लिए, इस कैस्टरेट फॉरेनर अफ्रीकन ब्रदर के लिए। कैसे पहली गॉस्पल, फर्स्ट गॉस्पल यसाया नबी के सिफे में से इस बंदे को क्या खुशखबरी देती है, उसके लिए क्या होप है, उसके लिए क्या उम्मीद है। इसमें से 56 बाब के अंदर तीसरी आयत से, और बेगाने का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया है, हरगिज ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा। और खौजा, ठीक है, कह जी, और खौजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा हुआ दरख्त हूं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खौजे जो मेरे शब्दों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं, मैं और मेरे अहद पर क्या रहते हैं, कायम
कायम रहते हैं, मैं उनको अपने घर में अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। दैट्स अ गॉस्पल। ये खुशखबरी है मार्जिनाइज लोगों के लिए, गैर कौमों के लिए, LGBTQ के लिए, खौजों के लिए, खुसरों के लिए, हर एक के लिए खुदा के दरवाजे खुदा ने क्या किए हैं? खोल दिए हैं। दिस इज गॉस्पल। उसके लिए गॉस्पल। और बंदे ने सुनिया तो मन तो लगता और छाल मार देती होनी उन्हें। ठीक है, दैट्स द रीजन। अब आप उसका रिस्पॉन्स सुनिएगा। जब उसने लिखा शुरू किया और उसे यीशु की क्या दी? खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे, आखिरी सवाल उसने किया है, उसने कहा देख पानी तो क्या है? मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से तुम यहूदियां गरोई हैं कि यहां मेरे लिए होप है? क्या मैं सिर्फ गैर कौमों के सहन तक रहूंगा या मेरे लिए बेटे बेटियों की तरह घर में क्या है? जगह है। That was his speculation। ये उसका स्पेकुलेशन था कि ये बंदा है, ये भी यहूदी, It's a Greek speaking Jewish, लेकिन मैं तो आउटकास्ट हूं, मैंने तो फिजिकली मैं तो दाखिल नहीं हो सकता खुदा की जमात में, लेकिन क्या मेरे लिए जगह है कि अब मुझे कोई चीज रोकती है कि मैं बपतिस्मा ना ले सकूं? फिलिप्पस ने उससे कहा कि तू क्या कर, ईमान ला तो क्या बपतिस्मा क्या है? ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का क्या है। Here he confesses। पीछे ऑर्केस्ट्रेट किसने किया है? ऑर्केस्ट्रेटेड कौन कर रहा सारे डायलॉग को? खुदा का रूह, गॉड स्पिरिट, एंजल्स, फरिश्ते। आप एजेंसीज देखें खुदा क्या इस्तेमाल कर रहा है, और हर एजेंसी अपनी लिमिट में है। जिसका जो काम है, ना वो ज्यादा टाइम ले रहा है, ना वो अपनी मिनिस्ट्री से एक्सेस कर रहा है, ना वो अपनी हदूद से बाहर जा रहा है। फरिश्ते का काम सिर्फ क्या था? एंजल का मतलब क्या है जी? एवेंगेलियन, जहां से लफ्ज इवेंजलिस्ट निकला है। एंजल मैसेंजर, ठीक है। होली स्पिरिट, खुदा का रूह प्रॉम्प्ट दे रहा है। खुशखबरी किसकी है? यीशु मसीह की है। और देने वाला कौन है? इंसान, ह्यूमन एजेंसी। आप देखेंगे पूरे का पूरा ट्रायून, बाप, बेटा, रूहुल कुदस, फरिश्ते, ह्यूमन एजेंसी। और खिदमत किसकी हो रही है? एक बंदे की, वन पर्सन, वन पर्सन। खुदा की बादशाही में कलाम में लिखा है जब एक नीचे जमीन पर क्या करता है तो आसमान पर फरिश्ते क्या मनाते हैं? इट्स अ पार्टी इन द हेवन। उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और ने क्या जी होन देर ना करो। फिलिप्पस और खौजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको क्या दिया? बपतिस्मा दिया। उसके बाद वो रुकया नहीं कि उन्हें वेखे जी मैनू हदिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खजानेदार है ना, उन पता है खजानेदार आदमी को हो सकता है कोई सोने के सिक्के की कर दें, ठीक है ना। वो नहीं रुका। कलाम में लिखा है जब वो पानी से निकलकर ऊपर आए तो खुदावन का रूह फिलिप्पस को, उन्होंने कहा तेरी मिनिस्ट्री खत्म, इतने तू अगे आना। उन्हें उत्थे नहीं टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किया, भाई जी मैं जो आवांगा ना अफ्रीका, ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन टिकट भी दे हड़ी, ठीक है, मेरा हदिया भी ला दी, तो जिन्हें दिन मैं रुकांगा 5 स्टार होटल ते बोतल शोतल ते आइसक्रीमा ते मार खाने ते मैनू फलाना खाना हजम नहीं होंदा ते मैं फलाने का खाना है, ठीक है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कलाम में लिखा है राइट अवे ही मिनिस्टर्ड एंड देन ही लेफ्ट। खौजा का रिस्पांस क्या है? लिखा है और खौजा उसने फिर ना देखा कि वो खुशी करता हुआ अपनी राह पर वो मकाम, वो स्टेटस जो उसे यहूदियत में नहीं मिला, वो खुदावन यीशु मसीह के वसीले उसको क्या हो गया? वो खुदा की बादशाही में क्या हो गया? दाखिल हो गया। सो मेरे जो लिखा है फिलिप्पस अशदूद में आ निकला तो भाई इन्होंने खुदा दरो किथे लै गया, उन्होंने कहा चल अगे हुन अगर बड़ा काम है अगे इतने डेरे नहीं लाने। पतरस संग तुहानू याद ना पतरस ने की कहा सी? यीशु मसीह की सूरत तब्दील हुई, मूसा भी आ गया, एलिया भी उतर आया, ठीक है। उन्हें क्या खुदावन आ तो चंगा चमत्कार हो गया, थले जाने की लोड़ ही कोई नहीं, अच्छे डेरे लाओ, जिन्हें होना पेंट चढ़ान, जिन्हें होना उत्ते आप ही लोग होंगे हिराम ना बेने गद्दी शद्दी पा के। यीशु मसीह ने कहा तेन पता नहीं की करना, थले आ चलिए। फिलिप्पस अशदूद में आ निकला, कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में
क्या करता फिरा है? खुशखबरी सुनाता गया. That is ongoing, never ending ministry. खुदा का रूह जब इस्तेमाल करता है तो मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम लोग जब इन मुल्कों में आते हैं या जब हम लोग यहां पर होते हैं, हमारे लिए मिशन में इन्वॉल्व होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और मिशन रिक्वायर नंबर 1 ओबीडियंस, नंबर 2 सैक्रिफाइस, नंबर 3 डिसर्नमेंट. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेथफुलनेस या सक्सेसफुलनेस? फेथफुलनेस. फिर वो चाहे सामरिया शहर की रिवाइवल हो या बियाबान के अंदर एक रूह के साथ क्या हो? मीटिंग हो. दैट्स द प्रॉब्लम. आखिर में हम फिलिप्पस का जिक्र पढ़ते हैं जी. अगर आप देखेंगे अमाल की किताब 21 बाब है, रसूलों के माल में 21 बाब, क्योंकि इसके बाद फिलिप्पस की स्टोरी खत्म हो जाएगी. इक्कीसवें बाब की 8वीं आयत. यहां लिखा है जी, पौलुस रसूल और उसकी टीम मिशनरी सफर पे हैं, ठीक है, और वो मुख्तलिफ मुल्कों मुख्तलिफ शहरों से मिशनरी ट्रिप से होते हुए वो कहां पहुंचे हैं? कैसरिया में पहुंचे हैं. और 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और हम सूर से, यानी टायर जहां यीशु मसीह भी गए थे, सूर से जहाज का सफर तमाम करके पतलिमस में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन के साथ रहे. दूसरे दिन हम रवाना होकर कहां आए? कैसरिया में आए. भाइयों का घर इत्थे वे हुण. फिलिप्पस मुबशर का घर कहां पर है? कैसरिया में है. और फिलिप्पस मुबशर के घर जो उन 7 में से था, याद आया छठा बाब, डीकन, ठीक है, उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे. इत्थे एक नहीं, इत्थे 4-4 चौपड़ियां ने. उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी जो क्या करती थी? प्रोफेसी. हियर यू गो. कल्ला पे हो ही नहीं, मार गो 4 कुड़ियां भी. That's how God bless. When we obey, when we participate, when we sacrifice. आने वाली पुश्तें, आने वाली नस्लें खुदा के साथ पार्टिसिपेट करती हैं. फिर खुदा खाली नहीं लौटाता. सो मेरे जीजो, मेरे और आपके लिए एप्लीकेशन क्या है इस स्टोरी में से? नंबर 1, खुदा कोई भी काम बगैर पर्पस के नहीं करता. ऐसी वेले है, कोई गल नहीं, मैं सोचना गुजरना, मैं कहा जी आ जा, मैं उंजी कॉल कर ली. भाई कोई काम तो दसो, कोई पर्पस दसो, इसका आउटकम क्या निकलेगा? God always do purposeful action. परसिक्यूशन भी अगर आई है तो उसके पीछे खुदा का क्या है? पर्पस है. आपकी जिंदगी में, इफ यू आर अ बिलीवर, आपकी जिंदगी चाहे आप पॉजिटिव हालात से गुजर रहे हैं, नेगेटिव हालात से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में छांव है या धूप है, आप मायूस हैं या आप इंतजार कर रहे हैं कि खुदा का के जी काम करेगा, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. वेट फॉर दैट मोमेंट. नंबर 1. नंबर 2, कॉलिंग एंड ओबीडियंस. जब खुदा का रूह बुलाता है, प्रॉम्प्ट करता है आपको मुख्तलिफ वसीलों से, मुख्तलिफ तरीकों से, देन वी नीड टू ओबे. और ये प्रैक्टिस, ये डिसर्नमेंट तब आती है जब आप खुदा के साथ कंटिन्यू क्या करते हैं? वॉक करते हैं. When you're a part of God's people, when you're part of God's word, जब आपकी खुदा के लोगों और खुदा के साथ क्या है? फेलोशिप है. ठीक है ना? साल 2 साल बाद कॉल नहीं चलती मिस. इट्स डेली वॉक जो खुदा के साथ करते हैं. फ्रॉम समरिया प्रिविलेज सिटी रिवाइवल से डेजर्ट मीटिंग. ठीक है. नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस रीडिंग. किसी स्कॉलर ने कहा था जी, कहता है जी ह्यूमंस को ये एलर्जी है, ये इचिंग है इंसानों को. क्या? दे कंटिन्यू रीडिंग व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड. उन्हें कंटिन्यू पढ़ी जाते ने भावें उन्होंने समझ आए. हाँ, साड़ा भी यही हाल है. ठीक है. तो देखोगे असं 20 साल 25 साल कालियां तो चिट्टे हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन असं की करी जाने बगैर समझे. Then there is a ministry of teachers. That's why God has appointed and draw divine teacher. आपको याद है इफ्सियों 4 बाब में जो खिदमतें हैं टॉप पे क्या हैं? उसने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को उस्ताद
बनाकर किसको दे दिया? क्लिसिया। ये क्लिसिया को गिफ्ट दिया खुदा ने। टीचर्स, अपोस्टल्स, इवेंजलिस्ट, दे आर गिफ्ट टू द चर्च। ये ओहदे नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ पुलपट पे खड़े होने का काम नहीं है। दीज आर गिफ्ट्स जो खुदा ने क्या किए हैं? क्लिसिया को दिए हैं। गॉड इज अ डिवाइन टीचर। यीशु मसीह की अथॉरिटी के बारे क्या है जी? कि वो उनको फरीसियों की तरह तालीम नहीं देता था, बल्कि कैसे देता था? साहिब इख्तियार की तरह, अथॉरिटेटिव टीचिंग। फाइनल पॉइंट, पार्टनरशिप इन गॉड्स मिशन। ये आउटरीच, ये मिशन कैंपेन फिलिप्पस पाइयर ने प्लान नहीं की थी। ये काउंसिल ने बैठकर मीटिंग नहीं की थी। इसका मतलब ये है, मैं और आप, चर्च जो है, मिशन मेरा आपका नहीं है। मिशन किसका है? खुदा का। खुदा ऑर्केस्ट्रेट करता है, खुदा डिवाइन डिजाइन करता है, और देन गॉड इनवाइट अस कि हम उसमें क्या करें? हम उसमें शराकतदारी करें, पार्टिसिपेशन करें, जहां पर खुदा ऑलरेडी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये प्रिविलेज किसकी है? ये मेरी और आपकी है कि हम खुदा के साथ मिलकर क्या करें। चॉइस आपकी है, आप चाहें तो क्या कर दें? ब्रश ऑफ कर दो, छड्डो परा यार की छड्डो, चर्च नु की दिया देना, छड्डो परा की चर्च की जाना है, छड्डो परा पादरी ने छड्डो, इन्हां दा काम ही है वे। दिस इज आवर पार्टिसिपेशन एंड आवर प्रिविलेज। वरना खुदा इस्तेमाल करने को, खुदा ने गलबात करनी है, खुदा खोते ने जुबान दे हटदा है, मतलब खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। दिस इज आवर प्रिविलेज, दिस इज आवर पार्टिसिपेशन। और ये किस लिए है? हमारी नस्लें तक बदल जाती हैं इसके अंदर। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप किसके लिए कर रहे होते हैं? आप अपने आने वाली नस्लों को गिफ्ट दे रहे हैं। यू आर इन्वेस्टिंग इन गॉड्स पार्टिसिपेशन। फाइनल आखिरी चीज है जी, कॉल जो है मेरे जीजो तब तक नहीं हो सकती until you have a passion for God's ministry and compassion for people। लोगों के लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर? कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। कितने लोग हैं इन दिनों सीरीज दोबारा शुरू हो गई है नेटफ्लिक्स पे, मैनिफेस्ट? यस, किसने बोला है? हाँ जी, ओके, थैंक यू सिंथिया। मैनिफेस्ट दोबारा शुरू हुई है। उसमें वो जो पुलिस अफसर है, क्या नाम है उसका? ना छड्डो पर, जो भी बीबी जड़ी है, उसका जो हस्बैंड है, उसको गिफ्ट मिला है इस सीरीज के अंदर कि वो जिस बंदे को हाथ लगाता है या उससे बात करता है, वो बंदा जो फील कर रहा होता है ना, वो सेम उसके साथ वही चीज क्या कर रहा होता है। अगर वो फियर है, उसको फियर फील होगा। अगर वो रिजॉइसिंग है, वो रिजॉइस फील होगा। अगर वो स्केर्ड है और अगर वो परेशान है, स्ट्रेस है, वो वही सेम एम्पैथी फील करता है जो सामने वाला क्या है कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड कंपैशन, कंपेनियन। मतलब आप उस बंदे के साथ क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं, वॉट एवर दे आर फीलिंग। पैशन फॉर एंड कंपैशन फॉर पीपल। जब तक ये नहीं होगा मेरे जीजो, हम खुदा की खिदमत नहीं कर पाएंगे। दिस इज आवर प्रिविलेज। आइए अपने सरों को झुकाएं।